Let me share my screen and just give me the confirmation is my screen is properly visible or not. Is it visible? Perfect. Let's open the VS Code. So I'll just open in terminal code dot, and from there you will be able to have the screen. This is overall whatever implementations we have done in our previous discussions, right? So I'm sharing with you one file which you can uh, upload at your end, and that will be the, you can say, confidential file for the company we can consider for our demonstration, and we will see that how can we fetch the information from that file using the RAG application, using the RAG demonstration. Okay, that's the way I have designed this session. So this is a very famous book which I personally have used while preparing for the interviews, I would say 3-4 years back. It's by Nick and Kevin. So I'm giving you a ebook reference for this. Just go ahead and download this book. You can use this book for today's session that we will use. Apart from this, whenever you are preparing for the interviews, if I will just try to open and share with you, you can use this book definitely. It's a very interesting book. I have a you know physical book of the same. Maybe you can find in the back in my bookshelf. The same book is there. Uh, I have purchased it like on the very first day when it launched. So here you can see what are the resume principles any data scientist should make. Portfolio projects, cold mail, behavior interview, probability based questions, stats based questions, machine learning based questions, SQL and DB design based questions, coding based questions, product sense, case studies, which are asked in interviews. So basically, it's a full fledged book which is basically helping you to prepare for the interviews. And it's the format is similar to what we have in Lead Code Premium, where company wise we get the questions, right? Here also you will be able to observe we will be having company wise questions available. For example, if I will go inside this machine learning part, access is not there. I think I have given the access. Oh, it's restricted. Now it should be for everyone. Refresh it and I've checked again. Refresh it and check again. So what I was telling you that if I will just try to go inside this machine learning part, now for those people who are already aware about machine learning, you guys will see over here. You can see the companies and their corresponding question. For example, Robinhood is one company. It's, I think, remote based form, if I'm not wrong. And the question is, say you are building a binary classifier for an unbalanced data, where one class is much rarer than the other, say 1% and 99% ratio. How would you handle this situation?
So here you can see we will have the corresponding answer for the same to handle the situation of imbalanced classes. So this is the complete answer for this. First of all, you should try to recall whatever concepts you know so far in machine learning and think about what could be the answer you will provide when an interviewer asks you this kind of questions. And then you can verify the answers with this specific ebook which I have shared with you, that whether your approach and the mentioned approach by author is this matching or not. Anyhow, this is not the concern for today, but just to give you a reference that what specific book we are working on today. Shall we move ahead now to the next part? Everybody is ready? Yes, चले आगे. अच्छा, हमने स्क्रिप्ट्स में एजेंटिक एआई का फोल्डर बनाया था लास्ट क्लास में. So what I'm thinking is कि we can create one more folder for RAG inside this, so that in future also when you try to refer at any point of time these implementations, you will have a better clarity, right? तो मैं क्या करती हूँ, let me create one folder which is of RAG implementation. ठीक है? And inside this I will create files now. So when we talk about RAG based implementation, what are the files required? What are the major in the pipeline? Two things were there. Do you guys remember that? I hope I have shared the article as well in the dashboard and you have gone through it and understood the entire concept. तो कौन से दो steps थे? One was the indexing, where if we will try to upload this PDF, it will try to give me the embeddings for the same and we'll try to store them in the vector embeddings. Second step was retrieval. तो हम क्या करते हैं, हम दोनों फाइल्स एक बार क्रिएट कर लेते हैं. So one is the indexing file, indexing.py, उसके बाद कोड लिखेंगे. Another one I am trying to create in the same folder. क्या बोला आप लोगों ने? retrieval, right? Very good. retrieval ही कर देते हैं, retrieval.py. इसके अलावा कुछ और रिक्वायर्ड होगा हमें? आई थिंक .env फाइल भी चाहिए होगी, जैसे एजेंटिक एआई में चाहिए थी. तो मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप करके, क्योंकि उसमें मेरी ओपन एपीआई की होगी, मैं क्रिएट कर लेती हूँ, आप लोग भी क्रिएट कर लो. ठीक है जी. I have created a .env file as well and expecting you guys also create that. बस कॉपी करना है, जो आपकी पुरानी की थी ना उसी को कॉपी कर लेना फिर से. सेम की को हम यूज कर सकते हैं, में कोई इश्यू नहीं है. इसके अलावा और कुछ चाहिए होगा? आज हम डोकर यूज करेंगे तो उसके लिए भी चीजें चाहिए होंगी, बट अभी के लिए मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया. तो मेरे पास अब .env फाइल भी है, इंडेक्सिंग है, रिट्रीवल है. अभी तक कितनी फाइल्स हैं? सबका हो गया क्रिएट env भी. जस्ट सेम env जो आपने एजेंटिक एआई के प्रोजेक्ट में क्रिएट करी थी उसी को ही उसी सेम कॉपी पेस्ट करना ओपन एपीआई की को. Shall we move ahead to the next part? आज के सेशन में बिकॉज वी विल बी यूजिंग अ डोकर, तो एक और फाइल हमें चाहिए होगी विच इज एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव कवर्ड अप इन आवर प्रीवियस प्रोजेक्ट, दैट इज docker compose.yml. अब ये उसी को समझ में आएगा जिसने पहले डोकर में काम किया हुआ है. Basically, when we are using a Docker desktop, we have to mention that what is the sort of service we are using, what is the vector DB where we want our vector embeddings to store,
तो बेसिकली होता क्या है कि व्हाटएवर बी द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, इट माइट बी डॉकर, इट माइट बी Podman. This is another platform that we will be having. In those platforms, there will be containers which will be created, there will be images which will be created, and we have to specify corresponding to that what is the image name, what is the port name where you want your data to be displayed. So, for now, I am writing this services, run service, vector DB, image, and the port. Now, why I have mentioned this, in few seconds I will let you know. Basically, today for the vector embeddings, we will be using the quadrant DB. That's the reason. And for the ports, we will be using this 6333 port to display the results. When we run the code, we will see that how this is helping us to do that. तो अभी के लिए सर्विसेज में हमें बस इतना ही लिखना है कि हम वेक्टर डीबी में इमेज डाल रहे हैं क्वाड्रेंट वाली, और पोर्ट में ये डाल रहे हैं. एक और काम मैं फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस कर देती हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए. दैट इज टू शेयर विद यू फाइल साइड बाय साइड. तो उसके लिए मैं एक काम करती हूँ. तो इफ यू नीड एनी हेल्प, गिव मी अ सेकेंड. मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एपीआई की तरफ जा रही हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. I will upload the pending files so that it will be easy for you to implement the stuff. वैसे कोशिश करना खुद से ही कोड लिखो जहां पे आप लोगों को चाहिए होगा हेल्प. तो आई एम sharing with you all the files for today. ठीक है. तो मैंने ये पहले किया है ऑब्वियसली कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए प्रोजेक्ट, और आई एम शेयरिंग इन द सेम फोल्डर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शेयर किया था ना. उसमें आपको 3 फाइल्स मिलेंगी जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं. तो डोकर कंपोज YAML की जो फाइल है उससे भी आप डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो अभी के लिए जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे. एंड दिस इज समथिंग विच वी आर यूजिंग. अच्छा, आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा. आई हैव शेयर, यू कैन चेक दैट आउट. एंड जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन इफ एवरीवन इज रेडी. अब हमें मेन काम शुरू करना है, वेयर वी विल स्टार्ट अवर इंडेक्सिंग स्टेप. अगर आप लोग रेडी हो तो मुझे बताओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. ये तो हो गया सेशन का प्रेप. अब मेन फोकस लेके आते हैं अपने काम पे. आर वी रेडी? Everybody is ready, right? ठीक है. Now there are two ways to work in this session. एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपना पूरा फोकस फिर से whatever things I am implementing, you will focus over there. And maybe after this session, you can implement. And if you have any sort of doubts, you can discuss in the group that we have. Second way could be, if that is possible for you, if you're already aware about all these stuffs in a contextual manner, so you can try to implement with me as well. And at least I want few learners over here who will be able to implement successfully, so that if in a group anyone is asking for help, you guys maybe will be the ones who can go ahead and help them out. ठीक है. तो देखते हैं कितने लोग इम्प्लीमेंट साथ साथ कर पाते हैं. दैट वुड बी ग्रेट. और जिन लोगों को लग रहा है कि काफी ओवरवेलमिंग होगा साथ साथ करना, यू कैन जस्ट लिसन द सेशन केयरफुली. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. सो कुछ चीजें हम सेम करेंगे जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ एजेंटिक एआई. वी विल जस्ट ट्राई टू लोड अवर first of all env file. So we will say from .env import load.env. आज के सेशन में we will be using something called as LangChain. Now, inside this LangChain, what is first of all this LangChain? Do you guys have any idea before we will proceed ahead? Anyone knows what is LangChain? कितनों को पता है? Yeah, it's a framework. Yeah, that's true.
So basically, if you will search about this, let me write it over here. I'm not able to write. A second. Yes. So basically, we are discussing about LangChain. You can say it's a kind of a framework which actually helps the developers like us to do the implementation in a smoother manner. So it's a Python framework which is basically used by the developers to build the applications specifically designed using LLMs. Like we have a GPT, right? So जब भी हमें किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करना होता है बेस्ड with the help of these LLMs, right? Then we can use this LangChain very frequently. You can think of it as a set of tools and connectors that really helps the LLMs more useful in real world applications. Now, कहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हो? बेसिकली अगर आपको किसी एक्सटर्नल डेटा का एक्सेस चाहिए, तो इन दैट सिनेरियो यू विल यूज दिस LangChain. अगर आपको किसी कॉन्टेक्स्ट को याद करना है एज अ मेमोरी की तरह स्टोर करना है, तो देन अगेन यू विल यूज दिस LangChain. If you want to call any tool which is inbuilt, so again we can go ahead and use this LangChain. It's kind of providing us a building block so that developers don't have to write the code from scratch. We have lot many functions available inside this. We can directly use them for our own purpose. Okay? So we will be using this LangChain. Obviously, to know more, you can definitely go ahead and explore their documentation. But for now, in our work, in our coding scenario, we will be using the required functions over here, which is actually helpful for building our projects. So अभी के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? इंडेक्सिंग की बात हम कर रहे हैं. So I hope everybody knows in the indexing what is the first work we have to do. We have to first of all load this PDF. Am I saying it correctly? We have to first of all load this PDF and maybe somehow convert them into document, and then the document we have to further split that into chunks. I hope you all remember that. Hi, if it's not there, we will install it. That's not an issue. So let's try to. I think we have this document loader. Document loaders. We can import by PDF loader because we are working with a PDF. Now, if you're not getting these functions, right? For example, right now I'm getting it because maybe previously I have worked with this specific LangChain. That might be the reason I'm able to get it. If you're not getting it, just you have to write pip install LangChain. So you can install it, and once it will be installed, you will be able to get these methods automatically without any error. First of all, are you guys getting it or not? So if I will just open the LangChain documentation as well. So you can see how the integrations are happening over here. We do have a LangGraph as well. So you can see pip install LangChain. You can try to install it if it's not available or you're getting some sort of issue. If it's available and you will be able to implement it, then no need to do anything for that part. हो रहा है सभी का? Just give me the confirmation. Let me take my water in the meantime.
Done? Everyone? Can we proceed further? All good? Perfect. After this, once we will be able to load the PDF, we have to split it, right? For that, I'm using something called as LangChain text splitter, which is basically used to split the text part. Inside this, we have a method called as import recursive character text splitter. So all of these are the functions that we are using in order to make our task easier, right? So you can say it splits the text by recursively looking at characters. It tries to split by different characters to find one that works. Okay. After this, we need embeddings as well, and we need a vector store as well. So for embeddings, what I will do, I will say from langchain underscore OpenAI, I will import something called as OpenAI embeddings. So I think it's quite obvious. It will basically be helpful in order to create the embeddings for our PDF. What's the next step? To store those embeddings in the vector DB. So for that, what we have to do, we will have to use from LangChain. Now, as I have mentioned, I will be using this quadrant DB. So we will import something called as quadrant vectors too. This will help us to store our vector embeddings in the quadrant DB. And we will provide the path where our PDF is available. So I will import the path function as well. This is the basic, I would say, imports which are required to implement our indexing step. Now ask me a question if you have. I think we have to install community version because I'm not getting suggestions. Just check that out a bit. Let me just check. Basically, if you are very new, I feel you have to install all of them. So the best idea could be you can create one requirements.txt file inside this and just try to click on pip install and then requirements.txt so that in one go itself all your these specific I would say requirements will get installed and you will be able to work smoothly with us. Just do it. Do you guys know these things? Very simple. Just create a new file inside this, or do you want me to create it? I don't need it, that's why I'm not running it. Basically, what I'm saying is create a new file. Just give that name to the file as requirements.txt. And inside this, just copy these requirements. And then maybe you can in one go click, because if you will do one by one, it will just take a lot of time and it's not something which is a good practice. In companies also, this is how basically the approach we follow. Either you can use this pip freeze, that also works. So either you can go ahead and use this or pip install. Both of them I think should work over this. So what will happen in one go itself, all the requirements will get installed and you can run smoothly with me. So as I have mentioned before this session, I already have done everything and that might be the reason I'm not getting any error. ये मैंने शायद गलत जगह पे कर दिया इंस्टॉल भी. ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम एनी हाउ नॉट यूजिंग इट.
but this is how it should be done. चले आगे. All okay? Is this working fine now? Please paste this. Let me do one thing. Let me share this file also with you guys. That will be good. Just give me a second. कर दिया है मैंने. चेक करो एक बार. This is the requirements.txt of mine, which I have used. मतलब ये सबको कवर कर लेगा, एजेंटिक एआई को भी एंड एवरीथिंग. So just go ahead and use this. Like it will contain obviously more things which will help in future as well. Just go ahead and write the command which Arpit have mentioned. Can you see the command by Arpit? Same command you can write. चले आगे, or shall I wait? बाय द वे इट्स अ वन टाइम प्रोसेस. अब आप आगे जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे अब मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ तो मुझे जरूरत नहीं पड़ रही. बट व्हेन आई हैड डन फर्स्ट टाइम, आई डिड ऑल दीज थिंग्स. आई शेयर्ड माय requirements.txt फाइल, राइट? आई हैव यूज्ड दैट. चले आगे. ऑल गुड. ठीक है जी. Only one student has said yes. What others are doing? ठीक है. Now, first of all, our first step is to load the .env, so that API we will be having, and then only our work will start, right? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे कि जो हमारी पीडीएफ वाली फाइल है उसको मैं फोल्डर में डाल देती हूँ. See this how I'm doing. I have just put that PDF in the same folder so that it would be easy for me to retrieve it. So RAG implementation का जो मैंने VS Code पे folder बनाया था, inside that all these files are there. I have put my ACE Data Science interview वाली file inside this. So if I'll check my VS Code now, this file should be there. So here we go. We have this file available. ठीक है? ऐसा कर सकते हैं आप. सिंपल है काफी. डाल दिया. Now what we can do, we can just mention the PDF path कि हमारी फाइल कहाँ पे available है. For that we can use this path. We can say go to the parent folder, and inside that just write the book name. I will just copy this name and paste it over here, and it is extension is .pdf. फिर से मैंने जो फाइल है वो आपको शेयर कर रखी है. आपको किसी भी कोड के रेफरेंस चाहिए हो तो आप एक और जगह पे वो फाइल खोल लो जो मैंने आपको शेयर किया है. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, हमने पाथ शेयर कर दिया. तो अब इससे क्या होगा? वी हैव अ पाथ. इट्स जस्ट दैट नाउ वी हैव टू राइट अ कोड टू लोड द फाइल, to load the PDF file. So what we can do, we can call our PDF loader, which is we have already installed and imported. And यहाँ पे we have to provide the file path, which is nothing but the PDF path which we have defined above.
देखो थोड़ा सा ठीक करा है हमने, इसको भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, लोड होने के बाद we can just load this loader dot load, and what will happen in the form of docs, we will be, so basically this step will simply help to read the PDF file and store it in the form of a docs. Once it is done, if you want, you can side by side print. Maybe let's say you want to print the first document. So you can mention over here what you can mention. The first document, ऐसा कुछ लिख लेते हैं, and then here you can mention docs 0. तो बेसिकली इंडेक्सिंग हो गई है हमारे पास वैल्यूज होंगी. तो इफ यू वांट, shall I go ahead and showcase you? देखें क्या हो रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा. पीडीएफ फाइल रीड हो रही है कि नहीं हो रही, लेट्स सी. Taking some time, but yes, you can see we are able to get an answer. So page content क्या है, एज डेटा साइंस इंटरव्यू, 201 रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस. बेसिकली जीरोथ वाले डॉक्यूमेंट में ये है. अब अगर मैं इसको डॉक 1 करूंगी और फिर से सर्च करूंगी तो वो नेक्स्ट एक तरीके से डॉक्यूमेंट दिखाएगा जो स्टोर कर रखा होगा. एंड so you can see over here we will be having total pages, page label, C1, and so on. So it's kind of a data is there, and then we have a metadata for every specific document. So you can see second document हमारे पास आ गया, उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, you can see. So page label पहला वाला C1 था, दूसरा वाला क्या है, C2 है. This is page 0, this is page 1. So in this way we have multiple docs available, and this is how our complete PDF will be already read. समझ में आया? Is this clear? सो बेसिकली एक सिंगल पीडीएफ के मल्टीपल डॉक्स अब हमारे बन गए हैं. इतना समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है? तो अगर मुझे फर्स्ट डॉक्यूमेंट देखना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मुझे सेकेंड डॉक्यूमेंट देखना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मुझे थर्ड डॉक्यूमेंट देखना है, ओहो, तो मुझे इस तरीके से टू इंडेक्स डालना पड़ेगा. एंड तो इस तरीके से वी कैन रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. लास्ट में करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आई थिंक इट इज क्लियर. In the meantime, it would be great if you can give me the confirmation in the chat whether it is clear or not. How many total PDF it will create? ये PDF create नहीं कर रहा. देखो, again ध्यान से समझो what I am trying to convey. आपके PDF में टोटल 301 पेजेस हैं. क्या हो जाता है इससे, एक मिनट. आपके PDF में टोटल पेजेस कितने हैं? 301. तो बेसिकली अब वो अपनी सीमा के हिसाब से जितना वो इंस्टोर कर रहा है उसी के टुकड़े कर रहा है. तो डॉक्स 0 में आप देखोगे कि हो सकता है पहला पेज अवेलेबल होगा, डॉक्स 1 में क्या होगा, दूसरा पेज होगा, मे बी लास्ट हमारा डॉक्स 301 या 300 होगा जिसमें हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा. एंड यू कैन चेक ऑल्सो कि टोटल कितने हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं. तो वो उसी का स्प्लिट है. जैसे अभी हमने शोकेस किया, तो यू कैन सी दिस इज द आउटकम विच वी आर गेटिंग. यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लोर एट योर एंड. फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकेंड डॉक्यूमेंट कहाँ है, मतलब है इसी के अंदर ही है, इधर थर्ड डॉक्यूमेंट आ रहा है. So you will be able to read the entire content and everything, what is there in each and every document. Each page one split ideally, but again it all depends on the content also, but usually yeah, this is correct. It automatically take,
based on the number of tokens and based on the number of values. So it's not something which we are defining it. Define अब करेंगे हम कि आपको कितने लेना है. अभी तक वो खुद से अपने हिसाब से कर रहा है, right? So this is fine, right? क्या मैं इसे remove कर सकती हूँ? Shall I remove this? Because this is just to showcase you. But let me just clear the output also so that we are on the same page. Let me remove this. But obviously, at your home, you can experiment a lot in terms of in between how the things are looking like, just like the way I have showcased you. Now, what I'm trying to do is I'm trying to do a chunking step because what I want is uh, whatever things are available in my docs, it will try to take that and split my data into multiple chunks. Okay? So that it will take those tokens and convert them into its embeddings. Okay? That's the main step which I want to do. So what I will do, I will try to use this, I will do this text splitter and उसके लिए I will use this recursive character text splitter. अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं. पहला कि आप अपने चंक साइज कितना देना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 1000. एंड दूसरा, व्हाट इज द चंक ओवरलैप यू वांट टू डू. अब इसका मतलब क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप. किसी को पता है? एनी गेसेस हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? और इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं वो भी लिख देती हूँ, फिर बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया. मैं स्प्लिट करूंगी अपने डॉक्स को यूजिंग द स्प्लिट डॉक्यूमेंट और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स में डालूंगी जो भी मेरे डॉक्स होंगे. तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट के टुकड़े हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहा है बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स दैट आई हैव मेंशन. अब ये क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज एक्चुअली इट इज डूइंग? चंक साइज, चंक ओवरलैप, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? एनी गेसेस, एनीवन? सेकंड दो. Yes, any guesses? What is happening over here? Hmm, that's correct. Chunk size is somehow character split. Then what is this chunk overlap? So as Yashasvi mentioned, it's a repetition of a 400 chunks. Okay, that's true. But why we are doing so? What is the reason behind doing this step? Any guesses? Anyone? To get a better context? That's true. That's true. So basically, सबसे पहले समझते हैं chunk size क्या होता है. So let me just copy this part of the code over here. First of all, the reason for this configuration is हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? The simple point is we are trying to break. हमने भी देखा राइट, डॉक्स 0, डॉक्स 1, उसमें बहुत सारा कंटेंट एक साथ है. So what we want is we want to break that large, I would say textual data into smaller, you can say, manageable pieces. Manageable pieces. Now, this is majorly we are doing it for basically language model processing. आप मुझे बताओ, किसी भी मॉडल के लिए जब वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है और उसकी ऑब्वियसली एम्बेडिंग्स निकाल रहा है, तो पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट देना बेटर आइडिया होगा या उसके छोटे छोटे चंक्स बना के मॉडल को पास करना बेटर आइडिया होगा? मॉडल को प्रोसेस करने के लिए कौन सा तरीका बेटर रहेगा? हमने अभी देखा डॉक्स 0 क्या है, डॉक्स 1 क्या है, एंटायर ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट है. एक तरीका ये था कि मैं ये स्टेप ना करती, मैं सीधा इसको
एम्बेडिंग्स का मॉडल कॉल करके एम्बेडिंग्स बोलती कि मुझे प्रोवाइड करो। तो ऑब्वियसली वहां पे वो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा करता और मेरे को एक प्रॉपर सॉरी एम्बेडिंग्स भी ना मिल पाती। So what we are saying over here, just try to first of all take this doc, convert them into a smaller manageable pieces, which we are calling here as a chunk. Now here we are saying the chunk size is 1,000. What does that mean? This means that here I am saying that you can take maximum number of characters. ये है maximum value. तो आप maximum आप कितने characters ले सकते हो? You can take the maximum number of characters 1,000 in each chunk. तो हर एक चंक में आप ज्यादा से ज्यादा 1,000 ले सकते हो, right? Now what this chunk overlap is doing? Here we are specifying that how many number of characters overlap between the consecutive chunks. नाम से पता चल रहा है. So here we are saying that how many characters will overlap between the consecutive chunks. For example, let me just give you one simple example. कोई बताओ मुझे सेंटेंस नेट से निकालना है क्या? Let me just give you one simple example. मैं एक मशीन लर्निंग के बारे में कुछ डेफिनेशन उठा लेती हूँ, ठीक है? मैंने ये कॉपी कर लिया. आई एम पेस्टिंग इट ओवर हियर. लेट्स से ये मेरे डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा है. अब मुझे नहीं पता नाउ आई एम नॉट manually calculating how many are 100,000 and 400, but just to give you an idea what I'm trying to convey or whatever model will do. Let's say this is composed of in total 1,000 keywords. So it's a window size. एक चंक में हम ये बोल रहे हैं सारे के सारे 1,000 लोग. फिर जब वो नेक्स्ट चंक पकड़ेगा तो लेट सपोज कि ये लास्ट के 400 है और ये बाकी के 600 है. लेट से यहां तक तो हम ये कह रहे हैं जो सेकेंड चंक बनेगा ना नेक्स्ट आइट्रेशन में जो कि हम 1,000 ले रहे हैं तो 400 वाला तो पीछे वाला होगा और उसके अलावा 600 नए होंगे. इससे क्या होगा? सो दैट अगर कभी कुछ कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन लूज हो रही है तो वो रिटेन हो जाए. So to retain the context of previous portion, we are just trying to use the previous chunks as well. तो इसीलिए हमने इस component को 400 लेके चल रहे हैं. Again, it's a hyperparameter. You can change it to 500 and 300 and 200 as well. But that's the main reason. समझ में आया? What this overlap is indicating to us? तो ये पूरा 1,000 था. जब हमने नेक्स्ट चंक उठाया तो पीछे का 400 उठाया और आगे का 600 उठाया और इस तरीके से अगली साइकिल चलेगी. फिर नेक्स्ट चंक चलेगा, फिर नेक्स्ट चंक चलेगा एंड सो. नो, इट्स नॉट टू मच कंसीडरिंग we have a document which is of quite full fledged length. The problem is कई बार क्या होता है जैसे मान लो हमने लिया मशीन लर्निंग इज टाइप ऑफ एआई दैट enables सिस्टम टू लर्न डेटा एंड improve पे वो कट गया. इम्प्रूव क्या हमें नहीं पता, हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. सो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? नेक्स्ट चंक में आ रहा है enable system to learn data and improve their performance over time without being explicitly programmed. So basically उस सेंटेंस का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए this is very important parameter which we have to do. Initially they have not used any chunk overlap at all and that is where they face the problem कि embeddings के अंदर जो actual contextual information आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लूज हो रही थी. और यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अभी मेमोरी वाली चीज को लेके नहीं आ रहे कि हम प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे अभी स्टोर कर रहे हैं कहीं पे. So this is the better way to get a judgment and to get a better embeddings for the same, and that's the main reason we have used this. But also it depends on the use case and the kind of data that you're dealing with. You can increase or decrease this overlap size accordingly, right? Yes, to retain the context. क्योंकि कई बार क्या होगा कि जब वो 1,000 हम बोल रहे हैं कैरेक्टर्स को तो हो सकता है कि वो
जब स्प्लिट होगा तो उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, वो स्प्लिट हो गई और अब कुछ सेंस नहीं बन रहा सेंटेंस का। तो वो सेंस बनाने के लिए हमने पीछे वालों को दोबारा लिया, ताकि कभी भी कोई भी सेंटेंस में एक ऐसा स्प्लिट ना हो जहां पे हमारे पास एक तरीके से 1000 कैरेक्टर्स तो है, बट उनका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। दैट्स द मेन आइडिया टू टेक दिस ओवरलैप थिंग। डुप्लीकेशन, यस यस दिवाकर, हम डुप्लीकेट वैल्यूज को, पीछे की वैल्यूज को दोबारा ले रहे हैं टू रिटेन द कॉन्टेक्स्ट। इज दिस फाइन नाउ? चले आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े कोड में। अंडरस्टूड राइट? व्हाट अबाउट अदर्स? हमारे डॉक्यूमेंट स्प्लिट हो गया एक स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स के अंदर। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? याद आ रहा है कुछ लास्ट सेशन में क्या किया था हमने? वंस वी हैव द चंक्स, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? एम्बेडिंग्स करें। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? हमें वेक्टर एम्बेडिंग्स निकालना है। इट्स वेरी सिंपल। हम एक एम्बेडिंग मॉडल को यूज करेंगे जो कि ओपन एआई ने ही दिया हुआ है हमें। इसके अंदर यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द मॉडल विच यू वांट टू यूज। हम यहाँ पे टेक्स्ट एम्बेडिंग प्री लार्ज करके एक मॉडल है, उसको यूज कर रहे हैं। अगेन यू कैन रेफर द यू नो documentation and you can check what are the different models that we will be having. It's one of the very widely used model which contains the embedding of each and every character. तो वो मैप करके हमें एक embeddings provide करेगा। So this is the step which is basically used to the vector embeddings of each and every character that we will be able to have in our previous part. Embeddings आ गई। अब embeddings को करना क्या है? मॉडल ने embedding दे दी, हमने इनबिल्ट मॉडल यूज किया, हमने कुछ नहीं किया, कोई बड़ी चीज नहीं करी हमने। हमने कुछ कोड स्क्रैच से नहीं लिखा, वी हैव जस्ट यूज्ड डायरेक्टली दोस फंक्शंस, दोस मॉडल्स टुगेदर। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? वी नीड टू इंजेस्ट इट इनटू वेक्टर डीबी। अब यहाँ पे मेन चीज आती है। सो बेसिकली व्हाट वी वांट इज, वी वांट टू, we have model available. Now what we have to do, we will use embedding model and create the embeddings for the किसके लिए embeddings create करनी है? स्प्लिट डॉक्स जो हमने ऊपर डिफाइन किए। once it is done, what's the next step? We will store these embeddings in the vector store। यही करना है हमें, और वेक्टर स्टोर बोल लो या फिर आप डीबी बोल लो, एक ही बात है। क्लियर? करें स्टार्ट। सो आई विल राइट ओवर हियर ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ एरर आता है, तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक उसे हैंडल कर ले। So now over here we will first of all try to create a vector db which is equals to, here we will use a quadrant db and इसके अंदर हम कहेंगे from underscore documents, क्योंकि हमें सबसे पहले documents को देना है। My document variable is split docs, वो मैंने पास करा। Then I will pass the URL जहां पे मैं जाके चेक कर सकती हूँ कि मेरा vector db क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर दैट हमने पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया था डॉकर फाइल में। डू यू गाइस रिमेंबर दैट? व्हाट वाज द पोर्ट नंबर? ऑब्वियसली वहीं पे जाके हम चेक करेंगे कि हमारा वेक्टर डीबी क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। डू यू रिमेंबर द पोर्ट नंबर? सो वी विल पास द यूआरएल http//localhost। पोर्ट नंबर वहीं देना है हमें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 6333 था ना शायद? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसके बाद आपके डीबी का नाम, जिसे हम कलेक्शन नेम भी बोलते हैं, आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मेरे डीबी का नाम है वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। और एम्बेडिंग्स कैसे देनी है, तो उसके लिए हमने एम्बेडिंग मॉडल ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। तो मैंने बोला कि उस एम्बेडिंग मॉडल को यूज करके आप एम्बेडिंग्स निकाल सकते हो। अब मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में किसी भी तरह का जनरलाइज्ड एक्सेप्शन अगर आता है,
So I will say just print to me instead of stopping my code, just print. I got an error creating vector database. And what error you got, you can help me to understand. अगर code successfully run कर जाता है, so we can print inside this that indexing of the provided confidential document is done. क्या हमने यहाँ पे कहीं पे भी कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली एलएलएम का यूज किया है? इन अ वे क्या हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं क्या? नो, वी आर जस्ट पुशिंग आवर data entries, our embeddings into a data store, into database with a proper port number where we know that once the embeddings will be done, we can go there and we can check and we can verify. Make sense? देखो इतना काम हो रहा है क्या आप लोगों का? मुझे नहीं पता अभी ये कोड रन करेगा या नहीं, वो तो हम चेक करेंगे, बट आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव डन. मैंने शेयर किया है चैट में भी और मैंने फाइल्स भी शेयर की हुई हैं आप लोगों को. क्या बोलते हो, करें और shall I wait for some time? Shall we run this? अभी रन मत करना आप लोग. हाँ, that's why I'm saying don't run this. मतलब are you guys ready? Now does everybody has Docker desktop in their system? Because now it will be using that Docker as well. नहीं, VectorDB इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा. I'll talk about that now. तो करना क्या है, Docker desktop को सबसे पहले ओपन करना है. मैं भी ओपन कर रही हूँ, आप लोग भी ओपन करो. Docker desktop. मेरा रन क्यों नहीं हो रहा? अभी थोड़ी देर पहले रन किया था मैंने. Is running, that's why. इस तरीके से कोई स्क्रीन दिखेगी आपको अपने उसमें. So you can anyhow at your end go ahead just if you are new for this just check कंटेनर क्या होता है, कैसे रन करते हैं, वो सब चीजें आप खुद से चेक कर लेना. बट अभी के लिए जस्ट ओपन दिस. ओपन करने के बाद फिर से हम अपनी फाइल्स में जाएंगे. हमारे पास एक फाइल थी डोकर कंपोज YAML फाइल जो हमने क्रिएट करी थी. सो व्हाट वी विल डू, डोकर को एक्टिवेट करने के लिए, उसकी सर्विस रन करने के लिए सबसे पहले हम इस स्पेसिफिक पाथ पे जाते हैं. तो अभी हम कहाँ पर है? तो सबका पाथ अलग अलग होगा. VENV के अंदर है हमारा सब कुछ. स्क्रिप्ट्स में है रैग इम्प्लीमेंटेशन करके मैंने फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरी ये फाइल अवेलेबल है. तो मैं करंट डायरेक्टरी में आ गई. either you can also pass the direct path and then you can write a command, but better idea is कि आप जहां पे आपकी YAML फाइल है ना उस डायरेक्टरी में चले जाओ. once you're inside that you can just mention a command docker compose up. ये कमांड यूज करनी है docker compose up. जैसे ही आप इसे यूज करोगे ना यू विल ऑब्जर्व कि आपका डोकर चलने लग गया. दिख रहा है आपको रैग इम्प्लीमेंटेशन का फोल्डर आ गया मेरा. जब मैं इसके अंदर जाऊंगी तो मेरी एक इमेज क्रिएट हो गई है उसी पोर्ट पे जो मैंने
डिफाइन किया था एंड जब मैं इसे क्लिक करती हूँ इस वेब यूआई को, तो मेरा क्वाड्रेंट डीबी का यूआई भी बन गया। दिस इज व्हाट आई हैव क्लिक्ड। तो इसके अंदर आपको दिखेगा आपके कलेक्शंस, कोड, वेलकम टू क्वाड्रेंट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। हमने कुछ इंस्टॉल नहीं किया है, हमने बस डोकर डेस्कटॉप की हेल्प से अप किया है चीजों को, और अप करते ही आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों को दिख रहा है बाय द वे? डोकर इज नॉट ओपनिंग। तो देखो, ये तो आपको करना चाहिए था, मैंने बोला था डोकर इंस्टॉल करके आना, प्रॉपरली चेक करके आना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इट डजंट टेक टू मच टाइम, बट अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया होगा तो हो सकता है कि वो पहली बार में इंस्टॉल हो रहा हो और टाइम ले रहा हो। कैन यू शो मी द पोर्ट्स? यप आई कैन, लेट मी जस्ट शोकेस यू। ये हमने यूज किए थे 633.633. This is the image that we have used. In fact, I have shared this YAML file to you guys in the folder. So you can just copy paste from there as well. The command is, I'm writing in the chat window. उस डायरेक्टरी में आने के बाद just write docker compose out. इससे क्या होगा? Your docker will start running, and then only you will be able to work ahead with the indexing part file. Now, because our DB is running, everything in the backend is running, now we can move ahead and run this indexing file. And then we can check that whether the embeddings will be created or not. But before that, I need a confirmation कि आपका डोकर चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि अगर वो नहीं चलेगा तो आपका वेक्टर डीबी नहीं चलेगा, वेक्टर डीबी नहीं चलेगा तो embeddings क्रिएट नहीं होंगी and it will throw an error to you. चला किसी का? Take your time. I'm waiting for you guys. Okay, अर्पित का कर गया। What about others? और किसी का हुआ? होने के बाद just give me a confirmation in the chat window. I want at least 3-4 people in the session जिनका हो जाए. The intention being कि those people can at least help the other learners after the session. क्योंकि सबका हो जाए is not something which is ideally feasible. Maybe there is some issue in your installation uh, or in any of the path. Not really sure. कई बार issues आते हैं because here we are working with multiple platforms. So this project is dependent on different stuffs. But अगर 2-3 लोगों का हो जाएगा तो at least if you guys will ask the questions in the group, me or those people voluntarily can help you out. It was working earlier trying. Okay, I'm waiting for a few more minutes and still if doesn't work, it's completely fine. Don't get tensed. You have a lot of time after the session and you can just explore at your end. It will run. It is not something which is quite a big deal, not difficult at all. It's just system things that sometimes take a lot of time. Okay. Now, just go inside the indexing file where you have written the code and just right click and run the Python file. So basically now let's see
कि इंडेक्सिंग हमारी हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि इट विल टेक ऑल्सो सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन अब here the file size is I think 300 approximate pages. If your file is more bigger, it will take more time because it will first of all take individual doc, split it into further tokens, and then get the embeddings and then store in the vector store. So it's a quite of numerous steps which we have to do in terms of accessing the indexing part, and it all depends on the size of your file. Higher the size, it will take higher time to get that done. So I'm doing it. I'm starting the indexing process. Uh, if there is an error in the code, we will definitely get the error also in the terminal. So just hope for the best, and I really want it should run in a one go. Let's see. Okay, it is opening this YAML file. Is this running also? So many ports opened up. It's okay. Let me just run this again. Create हो गई है क्या embeddings? Let me check. इतनी जल्दी होती तो नहीं है. No. What happened? It is started now, I feel so. Let's wait. It will take some time, obviously. Let's see. Let's hope for the best. I think once it is done, we will get to know क्योंकि हमने लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट डाला है इंडेक्सिंग ऑफ द प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इज डन. तो एक बार हो जाएगा तो वो प्रिंट स्टेटमेंट आएगा टर्मिनल पे. तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम. बट इन द मीन टाइम यू गाइस हैव अ टाइम जब तक ये हो रहा है. You can see the entry in the dashboard. Great. Hmm. It is happening. Let's wait. Let's wait. It is now showing me indexing of the provided confidential document is done. तो जब तक ये आपके पास में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब प्रोसेस इज गोइंग ऑन इंटरनली. और जब तक नहीं आ रहा, यू जस्ट हैव टू साइलेंटली वेट. मेरा हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी दिस रिस्पॉन्स. इट मीन्स दैट अवर फाइल रन्स विदाउट एनी एरर. अब द लास्ट स्टेप इज टू चेक. कैन यू सी we have successfully able to create the vector database. यही नाम रखा था हमने. And this is active. You can see over here. So if I will go inside this, you will be able to see the page content. You will be able to see the metadata, vectors, everything will be there. ये हमने इंडेक्सिंग कर ली हर एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की जो हमारे पास अवेलेबल था.
तो बेसिकली जब आपकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, पहली बात मैंने बोला हमने जो प्रिंट सेगमेंट लिखा है वो आना चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि जब आप अपने कलेक्शंस अपने वेक्टर डीबी में जाओगे, तो आपको अपने कलेक्शंस में एक डेटाबेस दिखेगा आपके जो आपने नाम डिफाइन किया था उसका, व्हिच इज बाय द नेम ऑफ वेक्टर डेटाबेस। ये डेटाबेस है जहां पे आपको सारी एम्बेडिंग्स दिखेंगी आपके काम की। सो यू कैन सी 3072 एम्बेडिंग्स बनी है। ऐसे हर एक पॉइंट के हर एक पेज के इतनी एम्बेडिंग्स आपको क्लियरली दिखाई देंगी। बेसिकली वी आर यूजिंग डोकर डेस्कटॉप env vector DB. We are using a Docker desktop to check in the background how the things are happening. तो आपको यहाँ पे पूरा के पूरा एक तरीके से लॉग्स दिखेंगे when you will go inside this, right? यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आपको कोई एरर आएगा तो आपको यहीं पे दिखेगा। Once it is done, then because we are using a quadrant DB and we have defined in that YAML file the port number, so आप जब इसको क्लिक करोगे तो वहां quadrant DB में जाके आपको कलेक्शंस के अंदर आपको वेक्टर डेटाबेस बना हुआ दिखेगा। Is this clear? Yeah, we'll talk about this. What is the meaning of this points? Status is I have already talked about segments, shards, and this vector configurations. But before that, can I get a confirmation? Is this something which is happening to everyone? को कॉपी कर लेते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या इसका इंट्यूशन है। This is what we successfully able to create. बताओ, चले आगे? Not multiple times, Yashasvi. Once it is done, now you can use this directly to do your work. Retrieval के अंदर retrieval का कोड हमने लिखा ही नहीं है अभी तक, अभी हम लिखेंगे तो you will get to how we can use it. So once it is done, you can use further for your work in the retrieval part of the code. ये एक ही बार का स्टेप है। अब रिट्रीवल में आप जितनी बार नई चीजें रिट्रीव करना चाहते हो आप कर सकते हो, वो बार बार इसी वेक्टर डीबी को यूज करेगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अब एक बार इन पैरामीटर्स को डिस्कस कर ले। इज दिस shall we start कि what this individual parameters is indicating to us? Okay, जिनका नहीं बना it's completely fine. Again, don't get worried, don't get tensed. Just take your time. I am here to help you out. Even after this workshop will get over, you can at any point of time mail me, reach out to me in the group, and there are other batchmates also who have done this in this live discussion. They will help you out. Okay, so don't get worried about that aspect. Okay, so now the first component indicates the database name. ये कहाँ से आया? This is what we have defined in the code. कहाँ पे डिफाइन किया था हमने? याद है आप लोगों को? Let me just showcase you. दिख रहा है आप लोगों को कलेक्शन नेम? तो यू विल सी ओवर हियर, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द कोड जहां पे हमने अपने कलेक्शन का नाम डिफाइन किया था। तो जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, दिस इज समथिंग यू विल बी एबल टू टेक इट फ्रॉम हियर। तो सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, स्टेटस ग्रीन का मतलब है कि नाउ योर डीबी इज रेडी एंड इट्स करंटली रनिंग। Points you can see approx 1241. Any guesses? What does this points indicate? Not chunk size. It indicates that how many number of vectors in total it has created. In this complete entire total chunk, you can say that's a correct I would say word.
So total, I would say number of data points, total number of chunks which your uh, system has done based on the entire PDF, it is 1241. So basically, each point corresponds to a one chunk जिसको embedding किया गया. तो कितनी embeddings हुई, कितने vectors बने, 1241. So in a way, yes, you can say total chunks जितने हुए, और total chunks होने के बाद जितनी embeddings correspond to that हुई, it is 1241. Clear है? Is this done? Segments is different, Arpit. I'm coming to that point. Now, what does the segments indicate? So basically, based on the performance or the scaling purpose, like multi-processing, अगर आप लोग को ये concept पता है, for example, we have this similar concept in big data as well. So instead of doing chunks side by side, मतलब एक एक करके करें हम 1241, it is doing at a time 8 simultaneously chunks and doing a processing for that. So just basically for the performance enhancement and for the scaling enhancement, this factor is being done. So basically, simultaneously आप ये सोच सकते हो internally 8 chunks बन रहे हैं और उनकी embedding हो रही है साथ साथ 8-8 करके, ताकि फटाफट से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, हम जल्दी से जल्दी embeddings को क्रिएट कर सकें. So the segment is a count of a physical segment which is used to store data, which is partitioned for performance and scaling, and that's the main reason it's 8. You can see over here. Then what does the shards indicate? This is also a segments, but ये होते हैं एक तरीके से, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल पार्टीशंस, और सेगमेंट्स होते हैं फिजिकल पार्टीशंस. एक तो हो गया इंटरनल मेमोरी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर हम कितने पार्टीशंस कर रहे हैं. फॉर नाउ इट इज वन, इट मींस कि हम कुछ पार्टीशन नहीं कर रहे, बिकॉज हियर द साइज ऑफ अवर डेटा इज वेरी स्मॉल. तो इसीलिए हम एक ही बार में फाइल को प्रोसेस कर रहे हैं और फिर उसके मल्टीपल चंक्स को हम 8 सेगमेंट्स में बांट के एम्बेडिंग कर रहे हैं. बट अगर मान लो आपका डेटा साइज भी काफी बड़ा है, तो उस केस में आपको शार्ड्स की वैल्यू भी 2 या 3 दिख सकती है, बेस्ड ऑन कि कितने नंबर ऑफ मल्टीपल कंप्यूटिंग्स काइंड ऑफ क्लस्टर्स इंटरनली यूज हो रहे हैं टू लोड योर डेटा एंड टू कंप्यूट इट साइड बाय साइड. So basically, what I have mentioned over here, based on the size of the PDF or the size of the data which you are using, डिपेंड करता है कि लॉजिकली कितने सिस्टम्स उसे हैंडल कर रहे होंगे. If you guys are aware about this concept of big data, in that we have a concept of something called as map reduce, जो कि बहुत पहले यूज किया करते थे हम लोग. Nowadays we have a concept of Spark. These are the strategies which people followed in the initial part for distributed computing, so that we will be able to manage our files simultaneously. Similar concepts in the vector DB also, they are using for sharding and segmenting. Sharding is basically used for the size of the file. If it is too high, kind of multiple computers are working together to give us a final result in terms of fast computation. Segments is majorly used for the content available inside a file and to make it the chunks embeddings much faster. तो दो चीजें हैं, एक है हमारे पास चंक्स को हमें फटाफट करना है एम्बेडिंग में कन्वर्ट, एक है हमें फाइल को इटसेल्फ फटाफट लोड करके पढ़ना है. तो फाइल को डिपेंडिंग अपॉन द साइज अगर हम लोड करके बात कर रहे हैं तो वो हम शार्ड्स को लेके कर रहे हैं, और चंक्स की एम्बेडिंग्स में कन्वर्जन की बात हो रही है तो हम सेगमेंट्स कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस फास्टर. बोथ ऑफ दीज स्टफ्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर द स्केलिंग पर्पस, कि अगर हमारा डेटा काफी बड़ा भी हो वॉल्यूम तो वी विल बी इजीली एबल टू हैंडल. सो दैट इज द थिंग. Then we have this vector configurations. यहाँ पे आपको दिखेगा 3072. This indicates the dimensions of your vector.
डायमेंशंस मतलब फीचर्स ऑफ योर वेक्टर, इसके बारे में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड द लास्ट वन इज कोसाइन. इट इंडिकेट्स द सिमिलैरिटी. मतलब कि जब आप रिट्रीवल कर रहे होगे, आप कोई क्वेरी डालोगे जो कि हम अभी लिखेंगे अपना कोड, तो उस केस में जब ये एम्बेडिंग्स में से सर्च करेगा तो वो कोसाइन सिमिलैरिटी को यूज करेगा. सबको पता है कोसाइन सिमिलैरिटी के बारे में? आई होप एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ कोसाइन सिमिलैरिटी. पता है कि नहीं पता है? So cosine similarity is a very interesting measure which is used to give us a score of how similar two items are. We have not discussed about this. I thought we have discussed this in a workshop. Okay, अगर नहीं डिस्कस किया तो कर लेते हैं एक बार. So you can see it's a measure of the similarity between non-zero vectors by calculating the cosine of the angle between them. तो काफी सिंपल सा फॉर्मूला है इसका अगर आप देखोगे. सो लेट्स सपोज ये आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स कंसीडर कर लो, एक्स एंड वाई. बड़ा बेकार तरीके से आया, मैं खुद ही लिख देती हूँ. सो लेट्स से हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, D1 डॉक्यूमेंट है और D2 डॉक्यूमेंट है. मुझे चेक करना है कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास में कितनी स्कोर्स की सिमिलरिटी है, कितना सिमिलर है दो डॉक्यूमेंट्स. तो हम क्या करते हैं, हम D1 और D2 का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और उसके बाद वी टेक अ एब्सोल्यूट नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ऑफ D1 एंड D2. सो हाउ कैन वी इवैल्यूएट दिस स्कोर? इसके लिए मैं एग्जांपल देख रही हूँ. आई थिंक दे डू हैव. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपके पास एक डॉक्यूमेंट X है जिस डॉक्यूमेंट का वेक्टर एम्बेडिंग ये है 3205. लेट्स अज्यूम एक डॉक्यूमेंट Y है जिसकी एम्बेडिंग ये है. तो ये क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा कोसाइन सिमिलरिटी स्कोर. कैसे करेगा? x डॉट y. सबसे पहले ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेगा सिंपली 3 इंटू 1, 2 इंटू 0, 0 इंटू 0, 5 इंटू 0. सबको ऐड करके हमारे पास नंबर क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ऑफ x एंड y. तो वो कैसे निकालते हैं? आई होप सबको पता होगा. मैथमेटिकली इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. ऐसे ही y का नॉर्मलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर. तो जब आप इसे इवैल्यूएट करोगे यू विल बी एबल टू गेट द आंसर एज 0.49. सो बेसिकली अगर कोई पूछे आपसे कि x और y कितने सिमिलर है, सो इट मींस दैट इट इज 49% सिमिलर विद ईच अदर. तो अगर कोई डिसिमिलरिटी की बात करता है कि कितने डिसिमिलर है, तो ऑब्वियसली आप 1 में से माइनस कर दोगे 0.549 को, तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज 51% डिसिमिलर. समझ में आया? सिंपल है ना? आई होप दिस मैथ्स इज क्लियर टू एवरीवन. ये काफी एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया आज हम पढ़ रहे हैं. मतलब एनएलपी की डोमेन में तो इसको काफी यूज किया जाता है एंड इट्स अ वेरी वाइडली यूज प्रैक्टिस टू चेक दैट एनी टू टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स आर दे सिमिलर और नॉट. तो अब अपने सिनेरियो में आप ये अज्यूम कर सकते हो कि लेट्स से कि एक ही डॉक्यूमेंट है जो कि अवेलेबल है इन माय वेक्टर डीबी, और ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि यूजर जो है वो रिट्रीव करना चाहता है. ठीक है. सो बेसिकली उसे वो क्या करेगा, वो हर एक वेक्टर डीबी के इंडिविजुअल वेक्टर्स को उठा के यूजर के रिट्रीवल वेक्टर से कोसाइन सिमिलरिटी निकालेगा. जिसका सबसे ज्यादा आएगा वो रिट्रीव करके देगा. सो बेसिकली कैसे करेगा वो? 3 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 0. सबसे पहले वो सिंपल प्रोडक्ट करेगा इंडिविजुअल वेक्टर्स की वैल्यूज का, और उसके बाद नॉर्मलाइज वैल्यूज निकालेगा दोनों पॉइंट्स की, विच इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. अब जो भी वैल्यू आई है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 36.16 इंटू 1. तो आंसर क्या आया? 0.41 बोला ना मैंने, 0.49. ये होता है टू इवेल्युएट द सिमिलैरिटीज को, और यही चीज हमारा डीबी भी यूज करेगा टू गेट द रिजल्ट. इज दिस मेकिंग सेंस टू एवरीवन? क्वाइट सिंपल, इंट्यूटिव.
टू अंडरस्टैंड। चले आगे। अभी हमारा कोड खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने रिट्रीवल का कोड लिखना है। सो शैल वी मूव अहेड नाउ फर्दर। इंडेक्सिंग हो गया, समझ में आ गया? परफेक्ट। नाउ व्हाट वी कैन डू नाउ इज, इसके अंदर ही हम रिट्रीवल का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। रिट्रीवल के लिए हमें क्या करना होगा बताओ? किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट फिर से पढ़ने वाली है? वेक्टर डीबी की पड़ेगी, एम्बेडिंग्स की भी पड़ेगी, और ओपन एआई की भी पड़ेगी, है ना? तो मैं काम करती हूँ, इंडेक्सिंग वाले कोड में कुछ इंपोर्ट्स हैं जो कि मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेती हूँ। एम्बेडिंग्स वाला होगा, ये होगा, लेट मी कॉपी दिस। और क्या चाहिए? डॉट टीएनवी भी चाहिए, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और कुछ भी चाहिए? ओपन एआई चाहिए, सो वी कैन से फ्रॉम ओपन एआई वी विल इंपोर्ट। ठीक है, लोड कर ले अपने ENV फाइल को। व्हाट्स नेक्स्ट? क्लाइंट को कॉल करेंगे ओपन एआई के साथ। एम्बेडिंग मॉडल सेम ही यूज करना है हमें, कॉपी कर सकते हैं। दिस इज द वेक्टर एम्बेडिंग्स मॉडल दैट वी हैव यूज्ड, इसे वो कॉपी कर ले। ठीक है जी, कॉपी कर लिया। इसके बाद जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था वेक्टर डीबी का, वही यूज करना पड़ेगा अपनी एम्बेडिंग चेक करने के लिए। बस थोड़ा सा चेंज ये होगा, थोड़ा सा चेंज ये होगा कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि फ्रॉम एग्जिस्टिंग कलेक्शन आपको क्या करना है, आपको इस यूआरएल पे जाना है, इस कलेक्शन नेम पे जाना है, और ये एम्बेडिंग यूज करनी है। ठीक है ना? कुछ अलग से तो नहीं किया मैंने काम। हमने ये बोला कि भाई हमारा कलेक्शन अवेलेबल है, आप एग्जिस्टिंग कलेक्शन के पास जाओ और वहां से आप वैल्यूज को फेच कर सकते हो। अब करें एक्चुअल रिट्रीवल वाला काम स्टार्ट। सबसे पहला काम, टू टेक द यूजर क्वेरी। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी इज इक्वल्स टू, वी कैन इनपुट, वी कैन मेंशन, एंटर योर क्वेरी। बोल सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या होगा, लेट्स से यूजर ने क्वेरी एंटर करी, उसके बाद क्या करना है बताओ? रिट्रीवल कैसे करेंगे? क्या होना चाहिए उस क्वेरी का? उस क्वेरी का क्या होना चाहिए? वेक्टर सिमिलरिटी सर्च डेटाबेस में, तो देयर शुड बी अ वेक्टर सिमिलरिटी सर्च इन वेक्टर डीबी, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है ना। तो हम बोलेंगे सर्च रिजल्ट्स विच इज इक्वल टू वेक्टर डीबी डॉट, मेथड कॉल करेंगे सिमिलरिटी सर्च का, और उसके अंदर हम अपनी क्वेरी को पास कर देंगे। तो हमारी क्वेरी यही है, इसको हम लिख सकते हैं यूजर क्वेरी, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। यूजर क्वेरी पास कर देंगे। एक बार प्रिंट करके देखें कैसा आउटपुट आ रहा है, हमारा काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर्च रिजल्ट्स, और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं सर्च रिजल्ट्स। ट्राई करें कैसा आ रहा है आउटपुट, फिर आगे बढ़ेंगे कोड में। लेट्स ट्राई।
एंटर योर क्वेरी आ रहा है। लेट्स से क्या लिखें क्वेरी, बताओ, थोड़ा सा कुछ आइडिया दो। ऑब्वियसली ऐसा कुछ बोलना जो पीडीएफ में है उससे रिलेटेड हो। अब हम डाल रहे हैं इंटरव्यूज की, आप बोलो बायोलॉजी के बारे में कुछ, तो डजंट मेक सेंस, राइट? क्या लिखना चाहिए बताओ? कुछ भी छोटा छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दो। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर हेड? एनीवन? व्हाट इज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमें कुछ आंसर दे रहा है। सर्च रिजल्ट, डॉक्यूमेंट, मेटाडेटा दे रहा है, फिर उसके बाद वो कुछ तो वैल्यूज दे रहा है। मतलब उसको जहां जहां पे ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम का कुछ भी दिख रहा है, तो वो सभी के सभी चीजें इस स्पेसिफिक आउटपुट में डाल रहा है, जो कि हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, ताकि हम थोड़ा सा और देख सके कि ये आउटपुट में क्या दे रहा है। फिर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे बेटर तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग नाउ विच इज लेफ्ट। तो लेट मी जस्ट शोकेस यू ये पहले तो कर क्या रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि जहां जहां पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं, हमने क्लासिफिकेशन डाला था ना, तो जहां जहां पे उसको सिमिलर क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा, वो उन चंक्स को उठा रहा होगा, और यू कैन सी वो सब हमें रिट्रीव करके दे रहा है। बट क्या ये अच्छा है आंसर? लाइक अगर हम जीपीटी जैसे टूल्स को यूज करते हैं, तो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि द काइंड ऑफ रिजल्ट्स व्हिच वी आर गेटिंग इज वेरी इंप्रेसिव एंड टू द पॉइंट, राइट? उसको करने के लिए अब हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए बताओ, थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं बेटर इसको? देखो, रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, बट रिजल्ट्स आना इज नॉट द आइडिया। रिजल्ट्स बेटर क्वालिटी में भी आने चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि हम इसे और बढ़िया तरीके से कैसे सर्च रिजल्ट्स में से भी वैल्यूज को परफेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं, ताकि हमारे रिजल्ट सेंसिबल भी हो। तो क्या हम यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन करते हैं और उसके अंदर बोल दे कि तुझे ऐसे रिजल्ट देने हैं, ताकि वो थोड़े से सेंसिबल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करे? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, और ऐसा ही होता है। तो हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में डिफाइन करेंगे कि तुझे रिजल्ट कैसे देने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ, जो मैंने पहले लिखा था। यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट you are a helpful AI assistant who answers user query based on the available context which is retrieved from the PDF file along with the page number and page content. Okay. Now next line I'm writing. You should only answer the user based on the following context and navigate the user to open the right page number to know more. मतलब हम ये बोल रहे हैं कि भाई तू इतना कंटेंट हमें आंसर में मत दे, तू बेसिकली ये बता दी कि जब अगर कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे बता देना, या फिर यूजर को ये इन्फॉर्मेशन दे देना कि आप इस पेज नंबर पे चले जाओ अगर आपको और डिटेल चाहिए तो। अब हम बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट आपको कैसे देना है, उसको हम डिफाइन कर देते हैं एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, और इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ ऊपर। मैं बोलती हूँ कि जस्ट गिव मी अ कॉन्टेक्स्ट समथिंग लाइक, बताओ कैसे चाहिए आपको, रिजल्ट कैसे चाहिए। सो उसके लिए आई एम जस्ट पेस्टिंग वन पार्ट ऑफ द कोड। अब देखो इसमें मैंने क्या किया। मैं ये बोल रही हूँ कि पेज कंटेंट, जो भी रिजल्ट आएगा उसका पेज कंटेंट उठाएगा ये। बाय द वे रिजल्ट को हम डिफाइन करेंगे, हमने डिफाइन नहीं किया हुआ ना रिजल्ट। या वी विल डिफाइन इट। सो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं पेज कंटेंट उठा उस रिजल्ट से, मेटा डेटा में से पेज लेबल उठा, फाइल का लोकेशन ले, एंड यस दिस इज वेयर वी हैव डिफाइंड। सो वी हैव यूज्ड द फॉर लूप। हम ये बोल रहे हैं कि सर्च रिजल्ट्स में से आइटरेट कर, एक एक रिजल्ट को उठा और
यूजर को इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर। दिस इज व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड एंड डिफाइंड इन द सिस्टम प्रॉम्प्ट। क्या करते हैं सिंपली, ये हमने लास्ट सेशन में भी किया था, चैट कंप्लीशन वाली चीज। इसमें हम बोलते हैं क्लाइंट डॉट चैट डॉट completions डॉट क्रिएट। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं। नाउ वी आर मर्जिंग जीपीटी मॉडल and drag together to give us a better results. And here we are defining the messages. Inside this, we are saying role, maybe system. We are providing the content. ये हमने किया था last session में. Similar code लिखा है मैंने. Agentic AI वाले part में. Have we done this? Similar thing. System prompt. This is the first thing. Then again, we are defining the role, which is a user. We are defining the content, which is a user query. ये हो गया. And finally, we will print our result by saying result, and here we can define that underscore completion choices. Uh, hmm, हो गया. इससे और बेटर हो सकता है ऑब्वियसली. अभी ना मैंने एक बहुत छोटा सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है. इसको अगर आप लोग खुद से एनहांस करो और एक और अच्छी क्वालिटी में रिट्रीव करो तो बहुत अच्छा लगेगा. अभी के लिए बस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा देती हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे. फिर से रन करते हैं. एंटर योर क्वेरी. सेम क्वेश्चन. क्या पूछा था? व्हाट इज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. क्या आया? Result. A classification problem is a type of machine learning task where the goal is to assign a given data to one of the k possible classes rather than predicting a continuous value. Common real life applications of classification include classifying users as likely to churn or not, predicting whether a person will check on an ad or not, distinguishing between fraud transactions from legitimate ones. There are two types of classification models: generative models, discriminative models. If you would like to read more about this, please refer to page number 92 of the document. आ गया? नहीं बोला था हमने उसे कि डिटेल इंफॉर्मेशन मत दे, टू द पॉइंट दे. और फिर भी लोगों को अगर जानना है तो ये बोल दियो लास्ट में कि कौन से पेज पे नेविगेट करना है. यू शुड ओनली आंसर द यूजर based on the following context and navigate the user to open the right page number to know more. आप कितने के लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इस तरीके का, मतलब आप क्यों जीपीटी जैसे टूल या परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स को फोकस करते हो? क्योंकि यू विल गेट इंप्रेसिव रिजल्ट्स, राइट? और आपके खुद के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में अगर इस तरीके का प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए जहां पे वो बता रहा हो कि आपको एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट में जाना है डिटेल लेने के लिए, अगर आपको ये डिटेल काम की लग रही है, तो व्हाट अदर थिंग यू नीड. दैट्स व्हाट द रेग एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट. इंडेक्सिंग क्रिएट करना, रिट्रीवल क्रिएट करना, ये क्रिएट कर दिया बस. इसी को रैग बोल रहे हैं लोग. नथिंग बियॉन्ड दैट. जितना, एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितना बेटर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखोगे ना, उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. मतलब यू कैन रेफर very good company system prompt. It is available on the Google. You can check. जैसे क्लॉड का चेक करें एक बार. आई थिंक ओपन सोर्स है वो भी. मैंने देखा था थोड़ा टाइम पहले. आई थिंक मैंने इसी का ही देखा था. क्लोड इज एंथ्रोपिक ओनली. तो इन्होंने ओपन कर दिया था. यू कैन सी अपडेट्स द कोर सिस्टम प्रॉम्प्ट
on Claude AI. Claude's web interface, mobile app user system prompt. देखो क्या लिखा हुआ है. Claude is a web interface. Claude.ai यूज किया है ना सबने इस टूल को. बेसिकली ये मैंने तो बहुत यूज किया है. अब नहीं करती ज्यादा, बट पहले मैंने बहुत किया था. पर्सनल से कर लेते हैं चलो. सो आपको ये बिल्कुल सिमिलर सा दिखेगा जो हम जीपीटी यूज करते हैं ना, वैसा ही. देखो बिल्कुल वैसा ही है. अगर आप इसमें देखो तो ओपस सोनेट ये मॉडल्स जिन्होंने यूज किए हुए हैं इंटरनली. अब इसके अंदर क्या है, यू कैन सी Cloud's web interface and mobile app use a system prompt to provide up-to-date information such as current date. Cloud at the start of every conversation. We also use a system prompt to encourage certain behaviors. That is always providing code snippets in Markdown. We periodically update this system prompt so that we continue to improve the Claude responses. This system prompt updates don't apply to Anthropic API. Updates between versions are bolded. ये पूरे के पूरे ना prompt दे रखे हैं आप लोगों को. समझ रहे हो आप? मतलब यू कैन रेफर की मतलब कंपनीज रियल टाइम में कैसे प्रॉम्प्ट्स लिख रही हैं टू गेट द बेटर रिजल्ट. पूरा ये प्रॉम्प्ट है. जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट लिखोगे उतने बढ़िया रिजल्ट आएंगे. यही है मेन चीज. और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड. आप भी वो अच्छे प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हो एंड यू कैन चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस. People are doing it. People are getting a lot of freelancing jobs, and they're charging a lot of money in terms of delivering these kind of products जो कि उनके लिए further आउटपुट जनरेट करके दे रही हैं. देखो जिसके लिए जिसको इन चीजों के बारे में नहीं पता उसके लिए दिस इज अ वेरी बिग थिंग एंड दिस इज समथिंग इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम. You can assume that for now we have taken an example of one PDF, but if let's say there is a company who is dealing with a lot of data, right? अब उस डेटा को वन बाय वन देखना और उसमें से कुछ चीजें निकालना कितना डिफिकल्ट टास्क है उस कंपनी के लिए. एंड मे बी बाय चार्जिंग फ्यू बक्स टू द फ्रीलांसर और द पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड दैट कंपनी, यू नो दे आर गेटिंग अ प्रोडक्ट जो कि खुद देख रहा है, बता रहा है कि हाँ ये वाली चीज इस स्पेसिफिक पेज नंबर पे अवेलेबल है, तुम जाके यहाँ पे चेक कर लो. और कंटेंट भी दे रहा है और बिल्कुल सही दे रहा है. और क्या चाहिए. कितना टाइम एक तरीके से बच गया, राइट? So you can see over here the assistance is Claude created by Anthropic. Current date is this. They're using also current date time. I think हमने भी यूज किया है ना अपने वर्कशॉप में. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किया एजेंटिक एआई के अंदर. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली इसी वर्कशॉप में हुआ है, बट आई फील आई हैव डन इट. किया है हमने to access the current date in agentic AI based project. Yes, yes, we have done this. So you can see here is some information about Claude and Anthropic. तो पूरा उन्होंने डिटेल दे दिया, समरी दे दिया, जो लिंक्स अटैच करने थे वो सब बता दिया. अब ये बोल रहे हैं if a person asks Claude about Anthropic AI, Claude should point to this specific link. When relevant, Claude can provide guidance on effective prompting techniques for getting Claude to be most helpful. This includes being clear and detailed, using positive and negative examples, encouraging step-by-step reasoning, requesting specific XML tags, specifying desired length and format. It tries to give concrete examples where possible, and so मतलब आपको देख के समझ में आएगा कि क्वालिटी प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं. मैंने तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है. आई वोंट से इट्स अ क्वालिटी वन, बट इससे ही हमारा कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया. नाउ यू कैन इमेजिन अगर आप एक अच्छा क्वालिटी रिजल्ट लिखो तो लाइक हाउ मच बेटर यू विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट. तो जो भी कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, जिनके भी मॉडल्स चल रहे हैं, जिनके भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जिनको भी लोग प्रीमियम के लिए पे कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे द मेन थिंग इज कि देखो मॉडल सब लोग यूज कर रहे हैं, यही सेम मॉडल सब लोग यूज कर रहे होंगे, बट उस कंपनी ने मे बी बहुत अच्छा सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा होगा टू गेट द correct up to the mark result, right? So that's the whole point. I hope it is clear till so far before we will jump towards the next discussion for today. Is there a separate role of prompt engineer? Prompt engineer करके नहीं है, LLM engineer करके roles है सुमा. और उसमें this is what they are expecting. LLM engineer roles में they're expecting you to write an efficient prompt, system prompt, so that they will be able to get efficient results at the end of the day.
So you will find LLM engineer based roles in multiple companies. तो वहां पे वो लोग यही चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. एंड बाय द वे दीज रोल्स आर नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक, क्योंकि इसमें वो इतना डीएस से भी नहीं पूछते, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग स्टफ की रिक्वायरमेंट भी काफी कम होती है. You can directly grab this job if you know these basic stuffs. Perfect. चले आगे थोड़ा सा. The last discussion of today's session is MCP. I think now is the right time because we are at the stage where we have already finished our desired discussions which we have designed for this workshop. So, in summary, we have discussed that what is large language model, if you remember our first day. After that, we have seen, ठीक है, पहले simple large language models आए, but these LLMs, for example, this chat GPT, they have some limitations. They come up with some limitations. The limitations like they won't be able to get access to any real time data. तो अगर आप बहुत स्टार्टिंग में जब ये आया था उस टाइम पे when you tried searching any of the things related to real time, जैसे what is the current date and current time, if you have encountered this error, it usually said, I remember it said that my system is just trained on, it usually provides some date, for example November 23 2000, let's say 24, and I'm not able to get a recent information. याद है सभी को ऐसा कुछ होता था. तो इट हैज द लिमिटेशन कि वो कोई भी रियल टाइम डेटा को रिट्रीव करने में फेल हो रहा था. हालांकि एक जेनेरिक मॉडल था जिसके पास में ओवरऑल जितना भी गूगल पे कंटेंट था वो ट्रेन था. So that's why it's called as large language model. But the only limitation was it won't be able to access the real time data. It is being trained. It is being trained on some fixed set of date. और वही डेट वो हमें रिटर्न करके देता था. देन एडवांसमेंट आया और एक एजेंटिक एआई वर्ल्ड मैं बोलूंगी क्रिएट हुआ आफ्टर दैट. एजेंटिक एआई वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें हम अभी हैं. बाय द वे, दिस इज द वर्ल्ड वेयर वी आर करेंटली राइट नाउ. जिसने बोला कि हम एलएलएम्स को यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसे उठा के फेंक दें, कोई यूजफुल नहीं है. एलएलएम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैड डन, बट सिर्फ एलएलएम्स में कुछ नहीं है. एलएलएम से हम नॉलेज को एक्सेस करेंगे जिस पे वो ट्रेंड हुआ है, पर रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने के लिए हम टूल्स को भी अप्लाई करेंगे. और वहां से जो चीज निकल के आई दैट इज मच मोर पावरफुल एंड हैव द एक्सेस एनी रियल टाइम डेटा, टू एनी रियल टाइम डेटा. आज के टाइम पे व्हेन यू सर्च ऑन चैट जीपीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, I have this GPT available, and if I will say, can you tell me what is the current date and time? So what do you think? Will this be able to give me the answer? हालांकि I'm not having a premium version, but still, will this be able to give me the answer? Or it will fail? Any guesses? क्या होगा? Yes, I have been logged in, and when I search this, it is giving me the answer. The current date is 20th September. Time is, हालांकि it is giving us a wrong time. 5:04. Yes, it's a wrong time, right? What is the right time right now?
It's 550. But anyhow, to be precise, मतलब इतना भी गलत नहीं है, ठीक है अभी के लिए. If I am asking the question that can you compare the stocks of Nvidia versus Tesla and give me the summary of the same. Now, current stock को करने के लिए, can you see? In the starting, it was just calling one tool, searching the web. देखा था आपने? So basically, right now, we are in a world जहाँ पे ये GPTs नॉर्मल GPTs नहीं है, ये एजेंटिक एआईज है जो कि टूल्स को यूज कर रहे हैं. वट एवर इन्फॉर्मेशन दे कैन गिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ पास्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो वो सिर्फ नॉलेज बेसिस पे जो डेटा ट्रेन हुआ है उस पे आपको देंगे. बट अगर आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगोगे जो कि करंट सिनेरियो में रियल टाइम चाहिए आपको, वो टूल यूज करेगा सर्च वेब का. आप फिर से चेक करना घर पे, अभी अभी अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो उसने शोकेस भी किया है. अगर आप इस सर्च वेब टूल को बंद कर दोगे, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब पहले तो ऑप्शन था हमारे पास बंद करने का इस टूल को भी, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता. दिस टूल, इफ आई हैव टू चेक कि सेटिंग्स में भी कुछ ऐसा ऑप्शन होता है तो है क्या, किसी को पता है? आई डोंट रिमेम्बर, बट प्रीवियसली जब ये आया था तो हमारे पास एक ऑप्शन हुआ करता था जिसमें हम क्लोज भी कर सकते थे इस कॉल को. तो अगर आप क्लोज करके देखते तो सिर्फ वो एलएलएम नॉलेज वाला होता, लेकिन अभी वो टूल्स को भी यूज कर रहा है तो इट्स एजेंटिक एआई. तो ये जो जीपीटीज है, परप्लेक्सिटीज है, ये सब एजेंट्स हैं क्योंकि ये सब टूल्स को यूज कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम ये आई कि अगर मान लो एक कंपनी है, लेट से गूगल, उसको एजेंट्स बनाने हैं, वो अलग कुछ बना रही है. फिर एक कंपनी है एप्पल, उसको काम करना है और उसको यूज करना है तो वो एक अलग कर रही है. फिर लेट से कंपनी आई माइक्रोसॉफ्ट, उसको करना है तो वो एक अलग तरीके से टूल्स को क्रिएट कर रही है. सो सब लोग अपने अपने खुद के कंपनी वाइज एजेंट्स बना रहे थे. लेट्स से दिस इज एजेंट 1 क्रिएटेड बाय गूगल, दिस इज एजेंट 2 क्रिएटेड बाय एप्पल, दिस इज एजेंट 3 क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. द इशू वाज कि कुछ भी प्रॉपरली, लेट्स से अगर कुछ ओपन सोर्स में हमें यूज करना है तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं था. एजेंट्स बनने लगे, पीपल आर यूजिंग इट क्वाइट फ्रीक्वेंटली, पीपल आर एंजॉयिंग इट. But there was no, as such, initially standardization was there. And that is where companies finally decided कि let's make it a standard. For example, जैसे गूगल ने HTTP, क्या फुल फॉर्म होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई अगर 404 रिस्पॉन्स आता है तो इसका मतलब क्या होता है HTTP के अंदर? When we hit and we get 404 response, what does that mean? सबको पता है आज के टाइम पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आप एक्सेस करना चाह रहे हो, इट्स नॉट फिजिबल राइट नाउ, काइंड ऑफ नॉट फाउंड. इसको हम 304 या 204 कोड में जाके नहीं कर सकते, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड. और आज के टाइम पे सब लोग इसको फॉलो करते हैं. तो जब भी हम किसी भी कोड को लिखते हैं तो हमारे दिमाग में यही नंबर आता है, और जब भी हम 404 सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इस स्पेसिफिक पाथ पे जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं दैट इज नॉट फॉर नाउ फिजिबल, सर्वर इज डाउन, साइट इज डाउन, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द एरर एज 404. तो ऐसा कुछ फाइनली उन्होंने डिसाइड किया म्यूचुअली टू क्रिएट अ प्रोटोकॉल जिसको उन्होंने नाम दिया मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल. मॉडल मतलब एक टूल ही है, कॉन्टेक्स्ट मतलब वही इंफॉर्मेशन ही है. बट हम अब जब हम इस वर्ड को यूज करते हैं प्रोटोकॉल को, इसका मतलब है कि अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर सम ट्राइंग टू स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग. तो हमने कोड को एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर कोई टूल बनाएगा और उस टूल को कॉल करेगा तो इसी तरीके से काम करेगा. अगर हमारे पास लेट से मल्टीपल टूल्स हैं तो प्रीवियसली क्या हो रहा था कि कोई एजेंट बनाते हुए एपीआईज को यूज कर रहा था, कोई कंपनी अपने खुद के फंक्शन डिजाइन करके यूज कर रही थी. तो अब क्या हुआ, वी हैव
वन स्पेसिफिक फॉर्मेट, वन स्पेसिफिक स्कीमा, जिसमें अगर आप एपीआई यूज करो तो इस तरीके से डेफिनेशन को यूज करोगे, अगर आप टूल्स को कॉल करो तो इस तरीके से करोगे। बेसिकली जैसे हमारे पास ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली जैसे हमारे पास एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, वैसे ही एमसीपी करके प्रोटोकॉल फेमस हुआ। और हमने बोला कि अब हमारे पास एजेंट्स ना होके सबसे पहले एलएलएम जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, वो एमसीपी के सर्वर से इंटरेक्ट करेगा। और एमसीपी का जो सर्वर है, हर एक कंपनी का खुद का एमसीपी सर्वर होगा। सो कंपनी वन के पास एमसीपी सर्वर वन होगा, कंपनी टू के पास एमसीपी सर्वर टू होगा, एमसीपी सर्वर थ्री होगा। तो इससे क्या हुआ कि समझना, क्रिएट करना और एक जनरलाइजेशन फैलाना पूरी दुनिया में कि कोड को करने का तरीका इस तरीके से करा जा सकता है जिससे कि हर एक बंदा उस कोड को समझ पाए और उस कोड को यूज कर पाए, डिफाइन किया गया। जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट में ही हमें ये लिखना है कि हम कौन से टूल्स को यूज कर रहे हैं, और सिस्टम प्रॉम्प्ट को बोलना है कि तुम जो भी टूल्स हमने दे रखे हैं, डिटेल्स ये हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज करो अपने तरीके से बेस्ड द यूजर क्वेरी, जैसा कि हमने अपने सेशन में किया भी था। वो ऑटोमेटिकली हमने 3 टूल्स डिजाइन किए थे, ऑटोमेटिकली वो चेक कर रहा था कि कौन सा टूल किस टाइम पे सुटेबल है। तो ये सब चीजें एमसीपी के अंदर आई, और दैट इज व्हाट इज अ न्यू बज़वर्ड। सेम थिंग बेसिकली एजेंटिक क्या, जो हमने डिस्कस किया, वही टूल्स वही डिजाइन, बट थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम चीजों को डिफाइन करते हैं, कोड को राइट करते हैं, तो वहां से निकल के आए वर्ड एमसीपी, राइट। तो अब आप अपने एंड से खुद से जाके इसको एक्सप्लोर करना, इसके स्कीमा को, एंड यू विल फाइंड मेनी थिंग्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव कवर्ड अप। एक सिंपल एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आप लोगों को। जैसे पुराने टाइम पे जब आपके पास लैपटॉप्स होते थे, तो वहां पे हम हर एक वायर को अपने इंडिविजुअल पोर्ट से जोड़ते थे। होता था ऐसा, अगर आपके पास 4 चीजें हैं तो आपके पास 4 अलग अलग पोर्ट्स हुआ करते थे, बहुत सारी वायरिंग हम यूज करते थे। आज के टाइम पे उसका ऑप्शन क्या है, हमारे पास एक यूएसबी करके होता है, हम उसको अपने एक सिंगल पोर्ट में लगाते हैं और उससे हम सारी की सारी चीजों को कनेक्ट कर देते हैं। तो जो सिंगल यूएसबी है ना, वो एक तरीके से एमसीपी है, जिसने लाइफ को थोड़ा सा और सिंपल कर दिया। तो अब बहुत सारी वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। इससे हुआ क्या, कोड को समझना इजी हो गया, कोड अंडरस्टैंडिंग इजी हो गया, इनफैक्ट कोड को मेंटेन करना काफी इजी हो गया, कोड मेंटेनेंस इज ऑल्सो गुड। और ये अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ टाइम में जाने वाली। आई थिंक इसका और ज्यादा डेप्थनेस ही आएगी द वे वी आर ग्रोइंग। तो आने वाले टाइम पे लोगों को पता होगा कि किस तरीके से, किस स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना है इन ऑर्डर टू डिजाइन द कोड। अब इसके लिए अभी भी चीजें चल रही हैं, बट यू कैन एक्सप्लोर एट योर एंड कि अभी तक कितने स्कीमास आए हैं, गूगल ने कैसे क्रिएट किया है। देयर वाज वन, आई थिंक, लिंक आल्सो देयर, आई विल शेयर इन द डैशबोर्ड। तो दिस इज समथिंग विच इज देयर। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि एमसीपी क्या है, सो नथिंग बिग, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप द डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा स्कीमा देख लेना खुद से, नाउ यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस।